حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ ابھی تک جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے وہ پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے ایک نئی بستی میں آ کے بسے ہیں اور وہاں پر انہیں روزگار اور رہنے کے لیے جگہ ملی۔ اب ہم لوگ اس کے آگے کی بات جانتے ہیں۔ ان کی بیٹی نے اپنے والد سے کہا، یعنی کہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھہرے تھے، ان کی بیٹی نے اپنے والد سے کہا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نوکر کے طور پر رکھ لیں، کیونکہ وہ مضبوط اور ایماندار ہیں۔ انہیں کنویں کے پاس بھی کسی ایسے ہی شخص کی ضرورت ہے جو ان سحریوں کا سامنا کر سکے، یعنی کہ وہاں کے جو مرد تھے ان کا سامنا کر سکے۔ ان کے والد نے پوچھا، یعنی کہ لڑکی کے والد نے پوچھا کہ انہوں نے اتنی جلدی کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمانداری کا اندازہ لگا لیا۔ بیٹی نے جواب دیا، جب میں نے انہیں ہمارے گھر بلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے پیچھے چل کر جاؤ تاکہ میں تمہاری شکل نہ دیکھوں، تاکہ کوئی جسمانی کشش نہ ہو۔ یہ جواب سن کر لڑکی کے والد خوش ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم سے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کر دوں، اس شرط پہ کہ تم مجھے 8 سال تک نوکری دو گے، مطلب کہ تم میرے انڈر میں کام کرو گے 8 سال تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ پیشکش بہت اچھی تھی، کیونکہ وہ اس جگہ پر اجنبی تھے اور انہیں جلد ہی رہنے کے لیے اور روزگار کی ضرورت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بیٹی سے شادی کر لی اور 10 سال تک ان کے جانوروں کی دیکھ بھال کری۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خاندان اور لوگوں سے دور تنہا زندگی گزارتے رہے۔ یہ 10 سال ان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتے تھے، کیونکہ یہ ایک بڑے امتحان اور تیاری کا وقت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روز رات کو ستارے دیکھتے، ہر روز سورج کے اگنے اور ڈھلنے کا مشاہدہ کرتے، وہ پودوں کو اگتے ہوئے اور مٹی سے نکلتے ہوئے طریقے کو دیکھتے، پانی کے بارے میں غور کرتے کہ کیسے زمین اس سے زندہ ہوتی ہے اور پھلتی پھولتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی عظمت میں کھوئے ہوئے رہتے، یہ ساری باتیں ان کے اندر سمائی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کا دین تھا، جو کہ ایک اللہ کو ماننے والا اسلام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں میں سے تھے، اور ان کے بعد بھی ہر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جسمانی طور پر تیار ہو رہے تھے، ویسے ہی ان کی روحانی تیاری بھی ہو رہی تھی۔ یہ سب اکیلا پن اور خاموشی میں، گھر میں یا چارگاہ میں جہاں پر بکریاں چرایا کرتے تھے، ایسی جگہ پر ان کا جسمانی طور پر اور روحانی طور پر ڈیولپمنٹ تیار ہو رہا تھا۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ ٹولز یعنی کہ اسپیشلٹیز دی جو ان کو بعد میں اللہ کے احکام کو صحیح طریقے سے نبھانے میں مدد کرتے۔ ایک دن جب یہ مدت ختم ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اپنے وطن مصر یعنی کہ ایجپٹ کی یاد جاگ گئی۔ انہوں نے فوراً فیصلہ کیا اور اپنی بیوی سے کہا، کل ہم مصر یعنی کہ ایجپٹ کے لیے روانہ ہوں گے۔ ان کی بیوی کہتی تھی، جانے میں 1000 خطرے ہیں جو اب تک ظاہر نہیں ہوئے، لیکن وہ اپنے شوہر کی بات ماننے میں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اتنی جلدی مصر جانے کا فیصلہ کیوں کیا، کیونکہ وہ وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگے تھے اور ان کے سر پر انعام بھی رکھا گیا تھا۔ پھر وہ وہاں پر کیوں واپس جانا چاہتے تھے؟ کیا وہ اپنی ماں اور اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتے تھے، یا پھر وہ فرعون کی بیوی کو دیکھنے کی تمنا رکھتے تھے جو انہیں ماں کی طرح محبت کرتی تھی؟ کوئی نہیں جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دماغ میں کیا چل رہا تھا جب وہ ایجپٹ واپس آئے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی یہ بات مانی، اور وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ یہی حکم ان کے قدموں کو ایک بڑے کام کے لیے لے جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ میدن نام کی جگہ سے چلے اور صحرا نام کی جگہ کا سفر کیا، یہاں تک کہ وہ کوہ طور تک پہنچ گئے۔ یہ بھی ایک جگہ ہے، وہاں انہیں محسوس ہوا کہ وہ اپنا راستہ بھٹک گئے ہیں۔ انہوں نے اللہ سے رہنمائی مانگی اور صحیح راستہ دکھایا گیا۔ شام کو جب وہ کوہ طور پہنچے تو انہوں نے دور آگ دیکھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خاندان سے کہا، میں کچھ آگ لے آتا ہوں تاکہ ہمیں کچھ
कुछ गर्मी मिल सके। जब वो आग के करीब पहुंचे तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी, ऐ मूसा, मैं अल्लाह हूँ, सब जहानों का रब। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए और इधर उधर देखने लगे। फिर उन्हें फिर से वो आवाज सुनाई दी, और तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है ऐ मूसा? कांपते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मेरी छड़ी है जिसे मैं सहारा लेने और अपनी बकरियों के लिए इस्तेमाल करता हूँ और भी काम में लाता हूँ। ये सवाल उनका ध्यान छड़ी पर मरकज करने के लिए था और मौजूजा दिखाने की तैयारी। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का आगाज था। फिर अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, अपनी छड़ी को जमीन पर फेंक दो। उन्होंने अपनी छड़ी को फेंक दिया और वो छड़ी फौरन एक सांप में तब्दील हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भागने लगे, लेकिन आवाज फिर सुनाई दी, डरो मत, इसको पकड़ लो, हम इसे फिर से इसकी असली हालत में लाएंगे। वो सांप फिर छड़ी बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का डर खत्म हो गया और उन्हें सुकून महसूस हुआ कि अब वो समझ गए कि वो हक पर हैं। फिर अल्लाह पाक ने उन्हें हुक्म दिया कि अपने हाथ अपनी बगल में डाल लो, और फिर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ बाहर निकाले तो वो चमक रहे थे। अल्लाह पाक ने फिर फरमाया, ये तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास दो निशानियां हैं, जाओ फिरौन और उसके सरदारों के पास, क्योंकि वो बहुत बिगड़ चुके हैं। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये खौफ था कि वो फिरौन इन्हें गिरफ्तार कर लेगा, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, मेरे रब, मैंने उनमें से एक आदमी को कत्ल कर दिया है और मुझे डर है कि वो मुझे मार डालेंगे। अल्लाह पाक ने उन्हें अमन की तसल्ली दी और उनका दिल मुतमईन कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मुझे कॉन्फिडेंट, सुकून और हिम्मत दे, और मेरे काम को आसान कर दे, और मेरी जुबान से गिरह खोल दे, मेरी बात में राहत और आसानी दे, ताकि वो मेरी बात को समझ सके, और मुझे मेरे घराने से एक मददगार दे। हारून मेरे भाई को, उसके साथ मेरी ताकत को बढ़ा दे और उसे मेरे काम में शरीक कर दे, ताकि अल्लाह का पैगाम और नबूवत का फर्ज मिलकर पहुँचाएं, ताकि हम तुझे खूब याद करें और तेरी तस्बीह कर सकें। बेशक तो हमेशा हमारी देखभाल कर रहा है। अल्लाह पाक ने कहा, तुम्हारी ये दुआ कबूल हो गई है मूसा, और हमने तुम पर एक और मेहरबानी भी की थी जब हमने तुम्हारी माँ के दिल में वही भेजी और उसे कहा, तुम अपने बच्चे को एक संदूक में डालकर दरियाए नील में बहा दो, और दरिया इस किनारे पर ला देगा जहाँ पर एक ऐसे शख्स का घर होगा जो मेरा भी दुश्मन है और तुम्हारा भी, और हमने तुम्हें अपनी तरफ से प्यार दिया ताकि तुम मेरी निगरानी में पले बड़े हो। जब तुम्हारी बहन ने जाकर कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसे शख्स का पता दूं जो इसे दूध पिला सके, फिर हमने तुम्हें तुम्हारी माँ के पास वापस भेज दिया ताकि उसकी आंखें ठंडी हो और वो गम ना करे। फिर तुमने एक आदमी का कत्ल किया, लेकिन हमने तुम्हें एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया और तुम्हें एक सख्त इम्तिहान में डाला। तुमने मैदान के लोगों में कई साल गुजारे और फिर तुम यहाँ आए हो मेरे हिसाब से ऐ मूसा, और मैंने तुम्हें अपने पैगाम और अपनी वही के लिए चुना है। तुम और तुम्हारा भाई मेरे निशानों के साथ जाओ और मेरी याद में कमजोर न पड़ना। तुम दोनों फिरौन के पास जाओ, क्योंकि उसने कुफ्र और बगावत में हद पार कर दी है, और उससे नरमी से बात करो, शायद वो नसीहत ले या अल्लाह का डर अपने दिल में लाए। उन दोनों भाइयों ने कहा, ऐ हमारे रब, हमें डर है कि वो हमें सजा देने में जल्दी करेगा या फिर हमारे साथ हद से गुजर जाएगा। अल्लाह पाक ने कहा, डरो मत, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुनने वाला और देखने वाला हूँ। तुम दोनों उसके पास जाओ और कहो, बेशक हम तुम्हारे रब के रसूल हैं, इसलिए बनी इजराइल को हमारे साथ जाने दो और उन्हें अजाब ना दो। हम तुम्हारे रब की तरफ से एक निशान लेकर आए हैं, और जो हिदायत का पाबंद है उस पर सलामती होगी। बेशक हम पर ये वही हुई है कि अजाब उसी के लिए है जो इनकार करते हैं और सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं और अल्लाह के हुक्म से घूमते हैं, यानी कि मुंह मोड़ते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम दोनों फिरौन के पास गए और अपना पैगाम दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके सामने अल्लाह, उसकी रहमत और उसकी जन्नत और तौहीद की जरूरत और अल्लाह की इबादत के फर्ज के बारे में बताया। फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात को घमंड के साथ सुना और समझा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पागल हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे ऊंचे मकाम को चुनौती दी है, यानी कि फिरौन को। फिर फिरौन ने अपना हाथ उठाया और पूछा, तुम क्या चाहते हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि तुम बनु इजराइल को हमारे साथ जाने दो, यानी कि जो इजराइल के लोग थे। फिरौन ने जवाब दिया कि मैं उन्हें क्यों जाने दूं जबकि वो मेरे गुलाम हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वो अल्लाह के गुलाम हैं जो सब जहानों का रब है। फिरौन ने फिर मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या तुम्हारा
तुम्हारा नाम मूसा है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ। फिर फिरौन ने कहा क्या तुम वही मूसा नहीं हो जिसे हमने दरिया से उठाया था जब तुम एक नादान बच्चे थे? क्या तुम वही मूसा नहीं हो जो इस महल में पाला गया, जो हमारे खर्चे पर जिंदा था और जिस पर हमारी दौलत से एहसान हुए? क्या तुम वही मूसा नहीं हो जो एक मिस्री आदमी का कातिल है? अगर मेरी याददाश्त मुझे धोखा नहीं दे रही है तो ये कत्ल कुफ्र के अमाल में से है। तुम कुफ्र में थे जब तुमने उसे मारा था। तुम एक भगोड़े हो और अब तुम मुझसे बात कर रहे हो। क्या कह रहे थे तुम मूसा? मैं भूल गया हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि फिरौन उनका पास्ट और अपने एहसानों का जिक्र करके उन्हें धमका रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके मजाक को नजरअंदाज किया और समझाया कि वो कुफ्र में नहीं थे जब उन्होंने उस मिस्री को मारा था, बल्कि वो एक भटके हुए शख्स थे। अल्लाह ने उस वक्त तक उन्हें वही नहीं दी थी। इट मीन्स की नबूवत उन्हें तब तक नहीं मिली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि वो मिस्र से भागे थे क्योंकि उन्हें बदला लिया जाने का डर था, हालांकि वो कत्ल एक हादसा था। फिर उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला ने उन्हें माफी दे दी है और उन्हें अपना पैगंबर यानी कि नबी बनाया है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के बीच की डिबेट पीक पर पहुंच गई यानी कि टॉप लेवल तक पहुंच गई तो फिरौन ने अपनी खुदाई का दावा करते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को धमकाना शुरू कर दिया। फिरौन ने कहा कि वो अल्लाह की इबादत करने का हक नहीं रखते और इस गुनाह पर उन्हें कैद किया जा सकता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये वक्त डिबेट का नहीं है, फिरौन की धमकियों का जवाब देना जरूरी है। फिरौन के सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अगर मैं तुम्हें एक जबरदस्त दलील और मौजज़ा दिखाऊं तो? फिरौन ने कहा दिखाओ अगर तुम सच्चे हो। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी और फिर वो लाठी एक जिंदा सांप में तब्दील हो गई। लाठी को सांप बना दिया। फिर उन्होंने अपने हाथ निकाले और वो चमकते हुए सफेद नजर आए। ये चीज देखकर फिरौन ने डर के मारे अपने मशवरों से कहा ये दोनों जादूगर हैं। फिर उनके मशवरा देने वालों ने जवाब दिया कि इन दोनों को यहीं रोक लेना चाहिए और मुल्क के सबसे बेहतरीन जादूगर बुलाए जाएं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जादू तोड़ सके। फिरौन ने अपने मुल्क के कोने कोने से सबसे बेहतरीन जादूगर बुलाए और अब आमना सामना जादूगर से था। समंदर है और पीछे फौज। सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने हमारी इससे पहले की स्टोरी नहीं पढ़ी है तो वो पहले पढ़ लें ताकि आपको ये स्टोरी और इजीली आसानी से समझ में आ जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरी प्लेलिस्ट का और आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी हमारी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है।